के मिड टर्म की प्रिपरेशन के लिए आपके लिए कुछ एमसीक्यूज और कुछ थ्योरेटिकल चीज़ों के साथ आपके साथ मटेरियल शेयर करेंगे जो आपके मिड टर्म की एग्ज़ाम अगर आप ये करते हैं इस तैयार तो आपका मिड टर्म एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो जाएगा। CS603 की बहुत कम वीडियोस हैं जो कि आपके मिड टर्म के एग्ज़ाम में आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती हैं, तो इसलिए मैंने ये ख़ुद सारा ये मटेरियल बनाया है। तो मैं ख़ुद भी अपने बनाए हुए मटेरियल से तैयारी करके एग्ज़ाम देता था। तो चलें स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। मटेरियल आपके लिए जो सबसे पहले कुछ एमसीक्यूज़ हैं, फिर इसके बाद आपको कुछ सब्जेक्टिव और उसमें उसी में से कुछ एमसीक्यूज़ भी बताता जाऊंगा जो जिससे आपका ये सारा पेपर है CS603 का बेहतर हो जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर चलें स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है होल पार्ट रिलेशनशिप एग्जिस्ट इन कंपोजिशन। सेकंड है डैश इज़ अ प्राइमरी टूल फॉर मैनेजिंग कम्प्लेक्सिटी। डिज़ाइन है क्लास डायग्राम इज़ एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्टवेयर डिज़ाइन है। When coupling is low, cohesion tends to be when coupling is high, cohesion tends to be low, and vice versa. How many bad smells fall in blotters? 5. Dash is a tangible entity that exhibits some well-defined behavior. Object is a tangible entity without association. There is only a set of unconnected classes. Complexities that are inherent in the problem are known as essential complexities. In hierarchical organization, larger component may be composed of smaller components. Which of the following code smell fall in change preventers shotgun surgery? The distinction between aggregation and association is often the matter of taste rather than a difference in semantics. Which of the following requirement is the statement of how a software product must map program input to program output function requirement? Design bridges the gap between requirement and testing. Which of the following graphical representation of workflow of stepwise activities and action with support of choice and iteration activity diagram? Which of the following is not the generic design process revolve solution? Which of the following activity is responsible for filling the positions in a organization structure? Staffing होता है. Design is difficult because it is an abstraction of solution which has yet to be created. Next question है team might attempt to make decisions, assign works or resolve conflicts through discussion, consensus and voting is known as democratic team. Which of the following is a catalog of important stakeholder categories and their stakeholder goal list? Dash is a statement of a client and development organization goal that a product must meet business requirement होती है. Business requirement is statement of client. Which the following is considered as the work done on a project होता है constraint. Actions or objects are represented by activity nodes in activity diagram में action और object जो होते हैं. A waterfall model captures logical but not the temporal relationship between software development activities. In which phase of software product life cycle we find bugs? Testing में होता है. Most models have board diagrams and textual components. Design phase of cycle model lies in the product design, which is not considered as part of identification and opportunities. ये कुछ एमसीक्यूज थे. अब ये कुछ सब्जेक्टिव में से आपको मैं एमसीक्यूज भी बताता जाऊंगा और कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बताता जाऊंगा. वर्ब क्या चीज़ होती है? वर्ब होता है टू मेक अ ड्रा प्लान्स फॉर समथिंग. इसकी एग्जांपल है क्लोज बिल्डिंग. अच्छा, नाउन क्या होता है? ड्राइंग और सेट ऑफ ड्राइंग शोइंग हाउ अ बिल्डिंग और प्रोडक्ट मेड इट विल वर्क एंड लुक. जैसे ड्रेस डिज़ाइन प्रोडक्ट डिज़ाइन है. ये कुछ हाईलाइट जो किए हुए ये भी देखते रहिए. ये अहम चीज़ें मैंने हाईलाइट की हुई हैं. अच्छा, सबसे पहले होता है सॉफ्टवेयर सिस्टम स्पेसिफिकेशन होती है, फिर सॉफ्टवेयर डिज़ाइन प्रोसेस होता है, उसके बाद आगे फिर ब्लू प्रिंट फॉर इम्प्लीमेंटेशन होता है. अच्छा, नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो होते हैं अपनी ये नॉलेज को अप्लाई करते हैं प्रॉब्लम डोमेन में, इम्प्लीमेंटेशन टेक्नोलॉजी में.
टेक्निकल प्लान फॉर इम्प्लीमेंटेशन, ओवरऑल स्ट्रक्चर, इवेंट। अच्छा, सिस्टम प्रोग्राम जो होता है वो कस्टमर नीड्स को उन्होंने मीट करना होता है। क्या टू इजी, ये शुड बी इजी टू इम्प्लीमेंट होना चाहिए, एफिशिएंट होना चाहिए और इजीली एक्सटेंडेबल होना चाहिए। अच्छा, कम्प्लेक्सिटीज जो होती हैं, पुअरली डिज़ाइन प्रोग्राम आर डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड मॉडिफाई। ये एक, इसको देखें, ये बट कॉस्ट ऑफ एडिंग आइथ फीचर, ये एमसीक्यू में आ सकता है। कॉस्ट ऑफ एडिंग आइथ फीचर एंड वेल डिज़ाइन एंड पुअरली डिज़ाइन प्रोग्राम। फिर ये है लार्जर द प्रोग्राम मोर प्रोनाउंस्ड आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पुअर डिज़ाइन। टू टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज होती है, एसेंशियल कॉम्प्लेक्सिटी और एक्सीडेंटल या इंसिडेंटल कॉम्प्लेक्सिटी। एसेंशियल कॉम्प्लेक्सिटी ये होती हैं जो इनहेरेंट इन द प्रोग्राम होती हैं, और एक्सीडेंटल वो होती है जो आर्टिफैक्ट्स ऑफ सोल्यूशन होते हैं। अच्छा, ये इक्वेशन है टी इज इक्वल टू ई प्लस ए। टी है टोटल अमाउंट ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, और ई है एसेंशियल कॉम्प्लेक्सिटीज, और ए है एक्सीडेंटल कॉम्प्लेक्सिटीज। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ है डिज़ाइन। क्या होता है? एंटीटोड टू कॉम्प्लेक्सिटी होता है, प्राइमरी टूल फॉर मैनेजिंग एसेंशियल एक्सीडेंटल कॉम्प्लेक्सिटीज। अच्छा, डिज़ाइन इज डिफिकल्ट बिकॉज डिज़ाइन इज एब्स्ट्रैक्शन ऑफ सोल्यूशन विच हैज़ येट टू बी क्रिएटेड। अच्छा, ये देखें, इसमें हमारे पास दो डोमेन होती हैं, एक प्रॉब्लम डोमेन होती है, एक सोल्यूशन डोमेन होती है। प्रॉब्लम डोमेन में रिक्वायरमेंट से हमने एनालिसिस तक जाना होता है, गोल होता है अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, और एनालिसिस मॉडल्स आर एब्स्ट्रैक्शन फ्रॉम एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम डोमेन। सोल्यूशन डोमेन जो होता है उसमें हम एनालिसिस के बाद डिज़ाइन आता है, डिज़ाइन टू इम्प्लीमेंटेशन पे जाते हैं। गोल क्या होता है? फाइंड ए सोल्यूशन। डिज़ाइन मॉडल्स आर द एब्स्ट्रैक्शन ऑफ द एंटिसिपेटेड इम्प्लीमेंटेशन। डिफ़िकल्टी जो होती हैं, प्रॉब्लम दैट कैन ओनली बी क्लियरली डिफाइंड बाय। डिफ़िकल्टी क्या होती है विद डिज़ाइन? ए प्रॉब्लम दैट कैन ओनली बी क्लियरली डिफाइंड बाय सॉल्विंग इट। अच्छा, नेक्स्ट, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन माइट नाइट बी एबल टू फुली एक्सप्लेन। कैसे? ये अच्छा, ये बॉब मार्टन फारो कैंटबैक, इनकी ये डेफिनेशन है। अच्छा, ये एक देख लें अहम चीज़ है, डिज़ाइन प्रोसेस कैन बी मेड अ मोर सिस्टमैटिक प्रेडिक्टेबल थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ मेथड, टेक्निक, पैटर्न्स अप्लाई अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल हेuristics। रोल ऑफ मॉड्यूलरिटी क्या है? हायरार्किकल इंफॉर्मेशन हाइडन एब्स्ट्रैक्शन इन डीलिंग विद सॉफ्टवेयर। गुड डिज़ाइन जो होता है डज नॉट रिड्यूस द टोटल अमाउंट ऑफ एसेंशियल कम्प्लेक्सिटीज इन अ सोल्यूशन, बट इट विल रिड्यूस द अमाउंट ऑफ कम्प्लेक्सिटी प्रोग्राम हैज टू डील। अच्छा, गुड डिज़ाइन जो होता है इनहेरिट इन प्रोग्राम विदाउट एडिंग टू एक्सीडेंटल कम्प्लेक्सिटी। मॉड्यूलरिटी क्या होती है? सब डिवाइड द सोल्यूशन इनटू स्मॉलर आर ईजियर टू मैनेज कंपोनेंट्स। डिवाइड एंड कंकर स्ट्रेटजीज में, हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन में लार्जर कंपोनेंट में बी कंपोज्ड ऑफ स्मॉलर कंपोनेंट, ये पीछे एमसीक्यूज में भी आया था। इंफॉर्मेशन हाइडिंग में है हाई डिटेल्स और कम्प्लेक्सिटीज बिहाइंड सिंपल इंटरफेसेस, ये इंफॉर्मेशन हाइडिंग होती है। एब्स्ट्रैक्शन क्या चीज़ होती है? यूज एब्स्ट्रैक्शन टू सुपर पास डिटेल्स इन प्लेस वेयर दे आर अननेसेसरी। अच्छा, नेक्स्ट है a deterministic process is one that produces same output given the same input। अच्छा, नंबर वन, जो नॉन डिज़ाइन इन नॉन डिटर्मिनिस्टिक क्यों होता है? नो टू डिज़ाइनर और डिज़ाइन प्रोसेस आर लाइकली टू प्रोड्यूस द सेम आउटपुट। हेuristics जो होती है नॉट साइंटिफिक और एल्गोरिथमिक बिकॉज डिज़ाइन इज नॉट डिटर्मिनिस्टिक डिज़ाइन टेक्निक। नंबर थ्री इसमें पॉइंट है एमरजेंट। डिज़ाइन इवॉल्व फ्रॉम एक्सपीरियंसेस एंड फीडबैक। डिज़ाइन जो होता है वो आइटरेटिव और इंक्रीमेंटल प्रोसेस होता है, ये आप याद रखें। बेनिफिट्स ऑफ गुड डिज़ाइन में हैं, गुड डिज़ाइन रिड्यूसेस सॉफ्टवेयर कम्प्लेक्सिटीज, ईजियर टू अंडरस्टैंड, रैपिड डेवलपमेंट, ईजियर टू मेंटेन होता है, इजी टू रीयूज़ कोड होता है, इम्प्रूव्स क्वालिटी। गुड डिज़ाइन जो होता है एक्सपोजेज डिफेक्ट्स, मेक्स इट ईजियर टू टेस्ट, complexes the root cause of other problem। Program that is difficult to understand more likely to be vulnerable to exploit rather than
वन दैन सिंपल, ये एमसीक्यूज में ये आ सकता है आपके। अच्छा, जेनेरिक डिज़ाइन प्रोसेस, फाइनल डिज़ाइन इवॉल्व फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड फीडबैक, ये जेनेरिक डिज़ाइन प्रोसेस में है। तो डिज़ाइन जो पीछे भी था आइटरेटिव एंड इंक्रीमेंटल होता है। फिर इसमें 6 पॉइंट होती हैं। अंडरस्टैंड प्रॉब्लम, कंस्ट्रक्ट ब्लैक बॉक्स, लुक फॉर एग्जिस्टिंग सोल्यूशन, डिज़ाइन इनकम्प्लीट, डॉक्यूमेंट रिव्यू, इटरेट ओवर सोल्यूशन। refactor में क्या होता है, evolve the design until meets functional requirement, maximizes non functional requirements। इन अच्छा, डोमेन नॉलेज क्या होती है इसकी एग्जाम्पल, इफ द हेल्थ केयर एप्लीकेशन डिजाइनर विल नीड सम नॉलेज ऑफ द हेल्थ केयर टर्म्स एंड कंसेप्ट। implementation knowledge of the capabilities and limitation eventual execution environment। Poorly designed documents are difficult to understand and modify। Ease of maintenance क्या होती है, code will be read more often than it is written। फिर आ जाती है मिनिमल जो complexity होती है, keep it simple होती है, और don't need high level of generality। extensibility क्या चीज़ होती है, design for today but with an eye towards the future। can be the characteristic can be conflict with minimize complexity। अच्छा, लूज कपलिंग, मिनिमाइज डिपेंडेंसी बिटवीन मॉड्यूल्स। रीयूजेबिलिटी जो होता है, रीयूज इज हॉलमार्क ऑफ मैच्योर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल। ये इस छोटे छोटे जो सेंटेंस हैं ये आपके एमसीक्यूज में आ जाते हैं इस तरह के। पोर्टेबिलिटी, वर्क्स और कैन इजीली बी मेड टू वर्क इन अदर एनवायरनमेंट। कॉस्ट ऑफ सिस्टम चेंजेस इज मिनिमल। Design understandable changes should be local, in fact high cohesion and low coupling। coupling ये क्वेश्चन में आता है, coupling is a measure of dependency between modules component, degree of interdependence between two modules components। अच्छा, इंटर कंपोनेंट रिलेशनशिप क्या होता है, degree of coupling between modules is determined by the number of interfaces between module, quantity और क्वालिटी। क्वालिटी क्या है, कम्प्लेक्सिटी ऑफ ईच इंटरफेस डिटरमिन्ड बाय। अच्छा, ये आप देख लिया, डिग्री ऑफ कपलिंग बिटवीन मॉड्यूल डिटरमिन्ड बाय क्वांटिटी एंड क्वालिटी। हाईली कपल्ड सिस्टम हैव स्ट्रॉन्ग इंटरकनेक्शंस और हाई डिपेंडेंस ऑफ प्रोग्राम यूनिट्स अपॉन वन अनदर। डिफिकल्ट टू टेस्ट, रीयूज एंड अंडरस्टैंड सेपरेटली। लूजली कपल्ड जो मॉड्यूल्स होते हैं और लेस डिपेंडेंट अपॉन ईच अदर होते हैं, ईयर टू चेंज होते हैं। नेक्स्ट आप चलते हैं, लो कपलिंग कैसे अचीव होती है, एलिमिनेट अननेसेसरी रिलेशनशिप, रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ अननेसेसरी रिलेशनशिप, ईजिंग द टाइटनेस ऑफ अननेसेसरी। फिर कोहेजन रेफर्स टू द डिग्री टू विच द एलिमेंट इनसाइड अ मॉड्यूल बिलोंग टुगेदर। मेजर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन मेथड्स एंड डाटा। अच्छा, आगे है, मॉड्यूल हैज़ हाई कोहेजन इफ ऑल द एलिमेंट्स आर वर्किंग टुवर्ड्स द सेम गोल। कोहेजन जो होती है इंट्रा कंपोनेंट रिलेशनशिप होती है। ये देखें, ये कोहेजन में ये लो कोहेजन है। लो कोहेजन कैसे है, इसमें डिफरेंट शेप जो हैं एक जैसी नहीं है। जब हाई कोहेजन में सेम जो शेप्स हैं, सब सेम शेप्स हैं। तो हाई कोहेजन होनी चाहिए जिसमें सेम थिंग्स एक साथ हों, बजाय इसके कि लो कोहेजन में डिफरेंट चीज़ें एक ग्रुप में हों। अच्छा, ये हाई कोहेसिव मॉड्यूल कोहेसिव मॉड्यूल जो होते हैं इजियर टू अंडरस्टैंड होते हैं, मोर रोबस्ट होते हैं, मोर रिलायबल होते हैं, मोर यूजेबल होते हैं। और जो लो कोहेसिव मॉड्यूल्स होते हैं, डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, डिफ़िकल्ट टू मेंटेन, डिफ़िकल्ट टू टेस्ट, डिफ़िकल्ट टू रीयूज़। ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ना हाई और लो के, ये आप देखें, ये यहाँ से आपको समझ आ जाएंगे। डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, ईजी टू अंडरस्टैंड, ये याद करें, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, हाईली कोहेसिव मॉड्यूल जो होते हैं, ये ऊपर हमने
देख लिया इजीली। ये हुई हाई कोहेजन, लो हाई कोहेसिव और लो कपल्ड। पहले ऊपर हमने पढ़ा है हाईली कोहेसिव, लो कोहेसिव। अब हाईली कोहेसिव ये easier to read, understand, modify, easy, potential for reuse, easier to develop. और लो कपल्ड में easy to read and understand, modify, increase potential to reuse, easier to develop and test। तो हाई कोहेसिव और लो कपल्ड की एक जैसी करेक्टरिस्टिक्स हैं दोनों की। अच्छा ये अब देख लें, ये लो कोहेजन और हाई कपलिंग है जो कि डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड है, जो कि इट इज़ नॉट बेस्ट। और ये जो है हाई कोहेजन एंड लो कपलिंग, ये बेस्ट ऑप्शन है। इसमें चीज़ें इजी टू अंडरस्टैंड है, इजी टू मॉडिफाई हैं। तो ये देखें नीचे, it is better low cohesion and high cohesion and low coupling, this one is better always। कपलिंग क्या होती है? इंटर कंपोनेंट रिलेशनशिप आउटसाइड में होती है। ये जो है लाइंस है ना, जैसे ये वाली, अब ये सिंगल सिंगल लाइन है, दिस इज कपलिंग, ठीक है। ये अब ये जो देख रहे हैं ये हाई कपलिंग है, इसमें ज़्यादा वो लाइंस एक दूसरे से मिक्सअप हुई हैं। ये सिंपल सा है, ये दिस इज़ लो कपलिंग। और कोहेजन क्या है? इंट्रा ये वो था कपलिंग इंटर कंपोनेंट, यानी कि दो कंपोनेंट के दरमियान। और कोहेजन है इंट्रा कंपोनेंट, तो जो कंपोनेंट के इनसाइड इनसाइड और विद इन, ये जो कंपोनेंट के इनसाइड में होता है। और ये कपलिंग जो होती है आउटसाइड दी कंपोनेंट, दिस इज ए कंपोनेंट। ये आउटसाइड में होगी कपलिंग और इनसाइड में होगी कोहेजन। ये आपको इजी अब मैं से समझ आ गया होगा। द बेस्ट डिज़ाइंस हैव हाई कोहेजन विद इन मॉड्यूल और लो कपलिंग बिटवीन द मॉड्यूल्स, विद इन और बिटवीन, टेंस टू बी इनवर्सली कोरिलेटेड, एक दूसरे के साथ कोरिलेटेड है। व्हेन कपलिंग इज हाई कोहेजन टेंड टू बी लो, और एंड वाइस वर्सा। स्ट्रक्चर डिज़ाइन की ये करेक्टरिस्टिक्स हैं, ये आप देख लीजिए। तो मैंने अभी और काफ़ी चीज़ें बतानी है, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो जल्दी जल्दी चलते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन के ये करेक्टरिस्टिक्स हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है? स्टेट क्या होती है? स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज एनकैप्सुलेटेड विद इन एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इज द टेंजिबल एंटिटी दैट एग्जिबिट सम वेल डिफाइंड बिहेवियर। और बिहेवियर क्या होता है? ऑब्जेक्ट एक्ट्स एंड रिएक्ट्स इन टर्म्स ऑफ इट्स स्टेट चेंजेस एंड मैसेज पासिंग। आइडेंटिटी क्या होती है? आइडेंटिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच डिस्टिंग्विश फ्रॉम ऑल अदर ऑब्जेक्ट्स। तो नेक्स्ट उस पर चलते हैं। क्लास क्या होती है? क्लास रिप्रेजेंट सिमिलर ऑब्जेक्ट्स। ये मैं जल्दी जल्दी आपको करा रहा हूँ, ये अहम चीज़ें हैं, तो यानी कि आपको पूरा मिड टर्म एक ही लेक्चर में आपको करा देता हूँ। फिर आगे चलते हैं। ये अहम चीज़ों को ना मैंने हाईलाइट किया हुआ है। क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट टू बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द सिस्टम होते हैं। बिहेवियर जो होता है इज डिफाइंड बाय द मैनर इन विच ऑब्जेक्ट इंटरेक्ट विद वन अनदर। In order to construct software system, we need mechanism and to create connection between these two building block, association और inheritance के बीच में, ठीक है। Association ये होती है indicate object of two classes are related in some non-hierarchical way, ये आप देखें। अच्छा, फिर एट्रीब्यूट्स ऑफ एसोसिएशन होते हैं, ये याद कर लेना है। डिस्क्रिप्टिव नेम, एरिटी ऑफ द कनेक्शन, डायरेक्शन, रोल्स। फिर एग्रीगेशन आ जाती है। एग्रीगेशन होती है फॉर्म ऑफ एसोसिएशन दैट्स होल पार्ट रिलेशन बिटवीन एग्रीगेट होल कॉन्स्टिट्यूएंट। ये एग्रीगेशन की एग्जांपल है। हॉलो, ये जो हॉलो डायमंड से इसको रिप्रेजेंट करते हैं एग्रीगेशन को। थिंक इट इज़ ए, इसको जो एग्रीगेशन बहुत कम यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि मॉडलिंग प्लेसबो होता है, यानी प्लेसबो का मतलब होता है फालतू चीज़। कंपोजिट एग्रीगेशन होती है, इसको फिल डायमंड से शो करते हैं। फिर आगे चलते हैं। इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस क्या होता है? क्लासिफिकेशन ऑब्जेक्ट इनटू ग्रुप्स ऑफ रिलेटेड एब्स्ट्रैक्शन। ये जो होता है हायरार्किकल वे में होती है।
और ये इसके मुख्तलिफ करैक्टरिस्टिक्स आप देख लें। इसको इस तरह से रिलेशनशिप को, इनहेरिटेंस को इस तरह के साइन से, एरो साइन जो फील्ड नहीं होता उससे शो करते हैं। ट्राइंगल शो द जनरलाइजेशन। फिर इसका आगे नेक्स्ट आ जाता है एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस और इंटरफेसेस। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस क्या होती हैं? We can implement a class particularly using what are called abstract classes. Every code field and method, in other words code is the complete instance होता है। इंटरफेस क्या होता है? mechanism to achieve abstraction collection of abstract method, no state or implementation। इंटरफेस वर्सेस एब्स्ट्रैक्ट का ये आप देख लें। मैं जल्दी जल्दी करा रहा हूँ, काफ़ी सारे हैं पेजेस मुझे कराने हैं, हाईलाइट किए। ये गड़ी पूछ की एक डेफिनेशन है। फिर आगे एसोसिएशन रिलेशनशिप अमंग इंस्टेंसेस ऑफ द क्लास है। एसोसिएशन क्या होती है? एसोसिएशन इज रिलेशनशिप अमंग टू और मोर स्पेसिफाइड क्लासेस डिस्क्राइब कनेक्शन अमंग। तो टू टाइप्स ऑफ एसोसिएशन होती हैं। यूजेस रिलेशनशिप जिसमें जो कि सिंपल एसोसिएशन होती है। होल पार्ट रिलेशनशिप जो कि इसमें एग्रीगेशन और कंपोजिशन होती है। ये अहम चीज़ है, इसको आप याद कर लें ये वाली। आगे चलते हैं। एग्रीगेशन की डेफिनेशन, फॉर्म एसोसिएशन होल पार्ट रिलेशनशिप। ये भी मॉडलिंग प्लेस है, वो एग्रीगेशन का हम यूज़ करनी चाहिए। ये मैंने उसको उर्दू में मैंने तर्जुमा इसका लिखा है, वहम की बीमारी। प्लेसबो मीन्स वहम। एग्रीगेशन स्ट्रिक्टली मीनिंगलेस। अच्छा, ये मॉडर्न फॉलोअर की कंपोजिशन के बारे में है। डेफिनेशन, फॉर्म ऑफ एग्रीगेशन एसोसिएशन विद स्ट्रॉन्ग ओनरशिप एंड कॉन्स्टेंट लाइफ टाइम ऑफ पार्ट्स बाय होल। अच्छा, इनहेरिटेंस आता है बी इनहेरिट फ्रॉम ए। ये जो बी है ए से इनहेरिट कर रहा है। ए जो है वो सुपर क्लास है और बी जो है सुपर क्लास है या वो बेस क्लास है ए, और बी जो है ये सब और डिराइव्ड क्लास है। ये इस तरह इनहेरिटेंस होती है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप बी इज क्रिएटेड कॉरस्पॉन्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ ए इज आल्सो क्रिएटेड। ये देख लें आप, इसमें ये इनहेरिटेंस की है। इनहेरिटेंस जो होती है कार्डिनैलिटी 1 to 1 होती है। कंपोजिशन जो होती है होल पार्ट है। अब ये कंपोजिशन फील्ड डायमंड से शो हो रही है और ए जो है बी की तरफ उसका डायरेक्शन है। या आप इसके देख लें मैं ये कंपोजिशन की इस तरह से ये मॉडल है। कंपोजिशन जो होती है 1 to 1 और 1 to many होती है। ठीक है, ये मैं जल्दी जल्दी करा रहा हूँ क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं एक ही लेक्चर में आपको पूरा मिड टर्म का। एसोसिएशन जो होती है ये इस तरह से इसका वो रिप्रेजेंटेशन होती है। ये इसका एसोसिएशन का मॉडल है। एसोसिएशन जो होती है 1 to 1, 1 to many और many to many होती है कार्डिनैलिटी। फिर रिलेशन मैपिंग आ जाती है। अच्छा, O2R मैपिंग होती है। ऑब्जेक्ट टू रिलेशन मैप, O2R मतलब है ऑब्जेक्ट टू रिलेशन मैपिंग। इसको ORM भी कहते हैं, O/RM या OR। फिर मैपिंग के एट्रीब्यूट, इनहेरिटेंस मैपिंग, एसोसिएशन मैपिंग, कंपोजिशन मैपिंग में ये मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। मैपिंग इनहेरिटेंस सब क्या होती है? इसमें ये इसके 3 पॉइंट है, फिल्टर मैपिंग, हॉरिजॉन्टल मैपिंग, वर्टिकल मैपिंग। फिर इसके आगे है फिल्टर मैपिंग जो होती है नॉट गुड, अच्छी नहीं होती। हॉरिजॉन्टल मैपिंग जो होती है ये इट इज़ नॉट बेस्ट। फिर आगे चलते हैं, वर्टिकल मैपिंग ये सब बेहतर होती है। ईच क्लास ऑफ द इनहेरिटेंस हायरार्की एब्स्ट्रैक्शन एब्स्ट्रैक्ट और कंक्रीट इज मैप्ड सो एज सेपरेट टेबल। फिर to maintain inheritance relation between parent child, OID of the class is inserted in the child foreign key। फिर आगे मैपिंग कंपोजिशन है। ये B is a whole part and A is a part। B whole part है, A is a part। अच्छा, फिर आगे चलते हैं। मैपिंग एसोसिएशन है। ये मैपिंग एसोसिएशन 1 to many है। ये इस तरह से देख लें, ये 1 to many। मैपिंग कार्डिनैलिटी ऑफ एसोसिएशन में होता है 1 to 1 रिलेशनशिप। जैसे ये 1 to 1, ये एक ये इसकी एग्जांपल है, ये है। और
क्या हो? अच्छा, ये वन टू मैन, ये यहाँ खराब हो गया, ये कैसे हुआ? ये वन टू मैनी रिलेशनशिप है, पता नहीं ये लाइंस कैसे आ गई। ये वन टू मैनी, वन टू मैनी, ये मैनी का ये साइन होता है। अच्छा, आफ्टर टू रिलेशन मैपिंग, ये आपने याद करना है, ये चार्ट जो है ना, यहाँ से क्वेश्चनिंग होगी। इनहेरिटेंस में इज रिलेशनशिप होती है, पेरेंट चाइल्ड होता है। लाइफ टाइम बेस्ड क्लास इज क्रिएटेड डिस्ट्रॉयड, पेरेंट डज नॉट नो अबाउट चाइल्ड, कार्डिनलिटी वन टू वन, ये इनहेरिटेंस का ये पूरा इस तरह से कार्डिनलिटी वन टू वन, इस तरह पेरेंट चाइल्ड, ये याद करें। कंपोजिशन जो होल पार्ट होती है, क्रिएटेड एंड डिस्ट्रॉयड विद इन होल, डज नॉट नो अबाउट द होल, वन टू वन और वन टू मैनी। एसोसिएशन जो होती है यूजिंग रिलेशनशिप लिंक, इंडिपेंडेंट होती है, नॉन एक्सक्लूसिव वन वे, बाई डायरेक्शनल वन टू वन, वन टू मैनी, मैनी टू मैनी। फिर मार्टिन फाउलर से एग्रीगेशन इज अ प्लेस बो, वो ऊपर भी हमने पढ़ा, लीव इट, एग्रीगेशन को कम इस्तेमाल करना चाहिए। जल्दी जल्दी मैं इसको आपको कराता जाता हूँ। मैजिक बिहाइंड पॉलीमॉर्फिज्म, कंपाइलर मेंटेन्स टू थिंग्स करता है, वी टेबल और वी पी टी आर, टेबल पॉइंटर, टेबल पॉइंटर टू द वी टेबल, ये आप चीज़ें ना याद कर, ये हाईलाइट मैंने की हुई है इस तरह ब्लू लाइंस में, वो अहम है। और आप तैयार कर लें, मैंने तो चूँकि आपको एक ही लेक्चर में करना है। कंपाइलर एड्स एडिशनल कोड एट टू प्लेसेस मेंटेन एंड यूज बी पी टी आर, ये इस तरह इसको देख लें। इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंटिंग कंपोजिशन की इम्प्लीमेंटेशन का ये एक ड्राइंग है, ये ये देख लें डेफिनेशन, यूनि डायरेक्शनल एसोसिएशन होती है। अच्छा, बाई, फिर एक बाई डायरेक्शन, एक यूनि डायरेक्शनल एसोसिएशन है, फिर बाई डायरेक्शनल एसोसिएशन होती है। सॉलिड डिज़ाइन प्रिंसिपल की ये डेफिनेशन है। मेंटेनेबल डिज़ाइन क्या होता है ये आप देख लें, सॉलिड डिज़ाइन के तीन करेक्टर, अंडरस्टैंडेबल, फ्लेक्सिबल, मेंटेनेबल। अच्छा, ये अब एक चीज़ अहम आ गई है कि सॉलिड नॉन प्रिंसिपल, बट अच्छा इसमें प्रिंसिपल की ये लाइंस है, पूरी जो कॉलम है प्रिंसिपल का है, ये ऑब्जेक्टिव्स का है। एस आर पी क्या होता है, सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल, इंक्रीज कोहेजन। ओ सी पी क्या होता है, ओपन क्लोज प्रिंसिपल, फ्लेक्सिबिलिटी, रीयूजेबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी। एल एस पी क्या होता है, लिस्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल, प्रॉपर इनहेरिटेंस। आई एस पी का इंटरफेस एग्रीगेशन प्रिंसिपल होता है, तो डील्स विद नॉन कोहेसिव इंटरफेसेस। डीआईपी का होता है डिपेंडेंसी इन्वर्जन होता है, क्रिएशन ऑफ रीयूजेबल फ्रेमवर्क। सिंगल एसआरपी, ये फिर इन सब का फिर आगे पूरी हर एक का इन वन टू थ्री फोर फाइव, इन पाँच के पाँच का आगे फिर हर एक का अलहदा अलहदा से उसको वो एक्सप्लेनेशन है। ये क्लास एसआरपी की एक क्लास शुड हैव ओनली वन रीज़न टू चेंज, इस तरह से हर एक का अलहदा। ये एसआरपी की आ गई एग्जांपल एक्सप्लेनेशन, ये ओसीपी की आ गई। ये जो चीज़ें हैं मैं वो मैंने हाईलाइट की हुई हैं, ये आप देखते जाएं। ये एलएसपी की आ गई, ये भी एलएसपी की एग्जांपल है, वायलेशन ऑफ एलएसपी। ये आईएसपी आ गया, इंटरफेस एग्रीगेशन प्रिंसिपल। ज़्यादा डिटेल नहीं, आप अहम अहम जो मोटी मोटी चीज़ें हैं वो याद रखें, जो आपके एमसीक्यूज़ में और शॉर्ट क्वेश्चन में आएंगी। फिर डीआईपी होता है, डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल है। फिर एल ओ डी, लॉ ऑफ डिमीटर है, क्या होता है ये, स्टाइल रूल फॉर बिल्डिंग सिस्टम्स, इसमें रिड्यूसेस कम्पलिंग एंड इम्प्रूवमेंट एलिबिलिटी करता है। लॉ ऑफ डिमीटर प्रिंसिपल है। हिडन डिपेंडेंसी क्या होती है, नॉट विजिबल इन द मॉडल बट प्रेजेंट इन द कोड। ये लॉ ऑफ डिमीटर का ये है कि डोंट टॉक टू स्ट्रेंजर्स। अच्छा, ये आगे है, मेक सोल्यूशन मोर रोबस्ट, लेस सेंसिटिव टू चेंज, लेस कपलिंग।
फिर एक्शन ओरिएंटेड डिज़ाइन इज़ द डिस्गाइज ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन। ये अहम चीज़ याद रखनी है। एक्शन ओरिएंटेड जो होता है वो डिस्गाइज होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का। गुड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में होता है हाई कोहेजन, लो कपलिंग, हमने ऊपर भी पढ़ी है। प्रिंसिपल ऑफ डेलीगेशन है, हैंडलिंग पुअरली। अच्छा, जैकबसन्स हेरिस्टिक्स में ये चीज़ें हैं। पॉलिसी इंफॉर्मेशन क्या होती है, रिक्वायर्स डाटा ऑफ टू क्लासेस टू मेक ए डिसीजन। फिर इवॉर जैकबसन्स का है। ये कंट्रोलर क्लास की डायग्राम है। प्लेयर रोल पैटर्न है। प्लेयर रोल पैटर्न में ए वन पर्सन प्लेयर डिफरेंट रोल, डाटा कोहेरेंस प्रॉब्लम आ जाती है। मल्टीपल हैंडलिंग मल्टीपल डिस्क्रिमिनेटर यूजिंग रोल प्लेयर्स। अच्छा, ये आगे चलते हैं। हैंडलिंग मल्टीपल डिस्क्रिमिनेटर बाय क्रिएटिंग हायर लेवल जनरलाइजेशन। प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड विद बोथ डिस्क्रिमिनेटर्स हैव टू बी प्रेजेंट, where all the features associated with the second generalization set would have to be duplicated. Number of classes can grow very large. Try adding omnivorous or amphibious. Avoid duplication of features. ये अहम चीज़ें हैं जो आप याद रखनी है आपने। Avoid too much complexities. Proliferation of classes होता है। Multiple inheritance is not supported by many languages like Java and C++. ये अहम चीज़ है आप क्वेश्चन को। Abstraction occurrence पैटर्न है। स्क्वेयर वेरिएंट है। ये एब्स्ट्रैक्शन ऑकरेंस की डायग्राम है और ये स्क्वेयर वेरिएंट की है। रिफ्लेक्सिव एसोसिएशन है, उसकी डायग्राम है। टू मेन टाइप्स होती हैं, सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव एसोसिएशन ये होती है, इसकी डेफिनेशन ये एग्जांपल है। और सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन ये है और उसकी एग्जांपल ये है। इसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ। अच्छा, आगे चलते हैं। अच्छा, ये आप याद रखें, डिज़ाइन पैटर्न है 4 एसेंशियल एलिमेंट। डिज़ाइन पैटर्न में 4 चीज़ें होती हैं। पैटर्न नेम, प्रॉब्लम, सॉल्यूशन। अब हर एक की अलग अलग पैटर्न नेम में क्या होता है, ये चीज़ें होती हैं। फिर आगे प्रॉब्लम में ये चीज़ें होती हैं। सॉल्यूशन में ये होता है डिज़ाइन, रिलेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोलैबोरेशन और कॉन्सिक्वेंसेस में ये होता है। फिर आगे चलते हैं। अच्छा स्टूडेंट, ये एक अहम चीज़ आ गया है। डिज़ाइन कैटेगरी, डिज़ाइन पैटर्न्स की 24 कैटेगरीज होती हैं। इसमें 5 जो होती हैं वो क्रिएशनल पैटर्न की कैटेगरीज होती हैं, स्ट्रक्चरल पैटर्न की 8 कैटेगरीज होती हैं और बिहेवियरल पैटर्न की 11 कैटेगरीज होती हैं। ये टोटल मिला के 24 बनती हैं। ये अहम चीज़ है, आपने याद करने की। ये डेफिनेशन भी दी हुई है। फिर आगे चलते हैं। ये जो सबसे पहला जो पैटर्न जो है, फिर पैटर्न टाइप्स हैं। क्लास पैटर्न्स की 4 टाइप्स हैं। ऑब्जेक्ट पैटर्न की 20 टाइप हैं। 20 और 4 की 24। अब ये जो डायग्राम, इससे आपको सारा वाज़ेह समझ आएगा। अब ये देखें, क्लास पैटर्न की 4 वो हैं कैटेगरीज और ऑब्जेक्ट पैटर्न की 20 हैं। ये ऐसे 20 है। अब यूँ देखें, क्रिएशन पैटर्न की 5 कैटेगरीज हैं, स्ट्रक्चरल पैटर्न की 8 कैटेगरीज हैं, बिहेवियरल पैटर्न की 11 कैटेगरीज हैं। तो सारे मिला के इस तरह भी 24 बनेगा और ऐसे भी 24 बनेगा। ये बड़ी अहम चीज़ है जो आपने ना याद रखनी है। नेक्स्ट ये है बेनिफिट्स ऑफ डिज़ाइन पैटर्न। ये देख लें। ड्रॉबैक्स ऑफ डिज़ाइन पैटर्न हैं। फिर आगे सिंगलटन पैटर्न आ जाता है। सिंगलटन का मतलब होता है 1। वेरी कॉमन टू फाइंड क्लासेस फॉर विच 1 इंस्टेंस एग्जिस्ट। सिंगलटन के यूजेस हैं, इम्प्लीमेंटेशन है। जल्दी जल्दी चलता हूँ ख़त्म, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी है। स्ट्रेटजी पैटर्न होता है, इसकी ये डेफिनेशन है। ये मॉर्फिंग है स्ट्रेटजी। ऑब्जेक्ट मॉर्फिंग क्या होती है, ये होती है ऑब्जेक्ट मॉर्फिंग। अवॉइडिंग हैविंग इंस्टेंसेस चेंज क्लास। ऑब्जेक्ट मॉर्फिंग में ये चीज़ें हैं। ये
अच्छा, ये आप कुछ चीज़ें ना याद कर लीजिएगा जो मैंने ब्लू लाइन से फसाद पैटर्न्स इसकी ये हैं। फसाद पैटर्न प्रोनाउंस है फसाद। फसाद मीन्स आउटसाइड व्यू। ठीक है, ये स्ट्रक्चर फसाद पैटर्न का ये स्ट्रक्चर पैटर्न है। ये फसाद पैटर्न क्या है, ये स्ट्रक्चर पैटर्न का है। ये फसाद की ये पिक्चर है। फसाद पैटर्न की ये भी याद कर लें, देख लें ये क्या होता है। फसाद ऑब्जेक्ट्स आर ऑफनली सिंगलेटन बिकॉज ओनली वन फसाद ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड। न्यू स्टेट डायग्राम, स्टेट डिज़ाइन पैटर्न की डेफिनेशन। ऑब्जेक्ट मार्फिंग स्टेट वर्सेस स्ट्रेटजी, ये इसको देख लें। अच्छा स्टूडेंट, ये डिफरेंस बिटवीन स्टेट एंड स्ट्रेटजी होता है। डिफरेंस बिटवीन स्टेट एंड स्ट्रेटजी पैटर्न इज वन इंटेंट मींस डिफरेंस इन ऑब्जेक्टिव्स होता है। इनके सिर्फ ऑब्जेक्टिव में डिफरेंस होता है। अब ये स्टेट और स्ट्रेटजी के का कंपैरिजन है, ये आप देख लें। इसमें सब चीज़ें मैंने हाईलाइट की हुई हैं। ये कंपोजिट डिज़ाइन पैटर्न है। ये कंपोजिट डिज़ाइन पैटर्न ऐसा होता है। इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं। अच्छा, अच्छा स्टूडेंट, ये ऑब्जर्वर डिज़ाइन पैटर्न है। इसमें सब्जेक्ट होता है और ऑब्जर्वर होता है। सब्जेक्ट की ये डेफिनेशन, ऑब्जर्वर की ये डेफिनेशन है। ये अहम चीज़ें ना, ये जो मैंने ब्लू से हाईलाइट की हुई हैं अंडरलाइन, ये आप देख लें क्योंकि एंडिंग की तरफ चलते हैं जल्दी से। अब ये एक में अहम चीज़ रह गई है, वो मैं उसकी तरफ चल रहा हूँ। ये आप देख लें इसको। रीफैक्टरिंग के बेनिफिट्स हैं। अच्छा, अब स्मेल्स आ गई हैं। बैड स्मेल्स इन कोड्स। 22 बैड स्मेल्स होती हैं। फाउलर की बुक में हैं 22 बैड स्मेल लिखी हुई हैं, जिसमें से 5 ब्लॉटर स्मेल होती हैं, 4 जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अब्यूज़र्स होते हैं, 3 चेंज प्रिवेंटर होते हैं, 5 डिस्पेंसिबल्स होते हैं और 5 कपलर्स होते हैं। अब इसको फिर सबकी अलग-अलग से है वो ब्लॉटर्स की 5 कौन सी होती हैं, ये 5 ब्लॉटर्स की होती हैं। फिर आगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अब्यूज़र के 4 ये वाली 4 होती हैं, ये देख लें 1 2 3 4। फिर आगे चेंज प्रिवेंटर की 3 ये टाइप्स हैं। ये आपने डिटेल में ना जाए, इनके बस नाम वगैरह याद कर लें, यही क्वेश्चन में आ जाता है। डिस्पेंसिबल की ये 5 होती हैं, ये 5 हैं डिस्पेंसिबल की। इस तरह से ये कपलर्स की 5 हैं, तो ये 22 बैड स्मेल्स होती हैं टोटल। ठीक है, कैटलॉग है। बिग रिफैक्टरिंग की ये डेफिनेशन इसके, ये रिफैक्टरिंग में ये चार चीज़ें होती हैं, तो इनकी आगे से। तो ये स्टूडेंट, ये आज का हमारा था पूरा CS603 की मिड टर्म का, ये एक ही वीडियो में मैंने सारा कंप्लीट करा दिया है। उम्मीद है आपको ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।